all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 3 of your class 7 computer, that is functions in Excel. You know, Excel performs many functions. It helps you in solving, it helps you in finding the average, it helps you in finding the percentages, it helps you in finding the count. You can count the different items by writing the count formula. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will learn about understanding cell ranges. Secondly, we will learn about what can you do with a cell range. आप क्या कर सकते हो एक cell range के साथ. Now, then third is defining and using name ranges. Fourth is functions. Then we will do filtering data. Then last one is conditional formatting. Now, introduction to Excel. Excel functions helps you to perform calculations easily. जो Excel के functions है वो आपको calculations perform करने में बहुत ज़्यादा help करते हैं. Instead of typing number manually, you can use functions. आप क्या use कर सकते हो? Functions use करते हो तो कर सकते हो to get answers faster. For example, if you have a list of numbers and want to find the total, आप एक list है number की और आपको total निकालना है तो आप क्या रखोगे? Sum function कर दोगे. Functions are built in tools. In Excel functions क्या है built in tools है Excel में that they save time. वो क्या करते हैं आपका time save करते हैं, reduce errors in calculation. कोई भी mistakes errors नहीं होते calculation में. Some common functions include some for adding numbers like average for finding the average. average डाल देते हो आप क्या find करने के लिए? Average find करने के लिए. Then count for counting items. Now Excel has many functions to help with different tasks such as math, dates, text and more. बहुत सारे functions होते हैं वो आपको different tasks में help करता है like finding the in maths, dates में, text में and datas में. Learn to use these functions will make you work easier. अगर आप learn करोगे इन functions को use करना आपका work बहुत ज़्यादा easier हो जाएगा, especially when handling large amounts of data. जब आपको large amount of data को handle करना है. Now understanding cell ranges, you have to understand the cell ranges. Cell range is a selection of two or more cells. क्या है selection? होता है two or more cells को एक साथ select करना. Instead of working with single cell, एक cell के साथ work करे बिना, you can select a group of range of cells to apply formula. Group select कर सकते हो, range select कर सकते हो, formula apply करने के लिए for formatting or other commands. For example, the range is A1, A2. The range includes the A1 includes A1, A2, A3, A4 and A5 range. Range which makes it easy to manage and work with multiple cells at once. एक साथ आप एक ही formula बहुत सारे multiple cells में लगा सकते हो. When you create a chart or add a formula, use ranges saves time because you don't have to select cell. अगर आपको क्या करना है chart create करना और add करना है formula तो आपको ये क्या use करना चाहिए? अगर आप यूज करोगे रेंजेस तो आपका वो टाइम सेव करता है बिकॉज यू डोंट हैव टू सेलेक्ट सेल्स. आपको सेलेक्ट सेल्स करने की नीड नहीं है वन बाय वन. यू कैन ऑल्सो मेक रेंजेस टू रिफर देम इजीली. आप रेंजेस बना सकते हो उसे रिफर करने के लिए इजीली. रेंजेस आर हेल्पफुल फॉर टास्क लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अप्लाइंग फंक्शंस टू ग्रुप ऑफ डाटा. रेंजेस बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि सॉर्टिंग करने के लिए, फिल्टरिंग करने, अप्लाइंग फंक्शंस को ग्रुप ऑफ डाटा में यूज करने के लिए. Now, this is why ranges are important when working with Excel. Ranges बहुत ज़्यादा important होती है अगर आप work कर रहे हो Excel के साथ. Now, selecting a range. How can you select a range? The active cell is always the selected cell. जो active cell होता है green color का highlighted वो क्या होता है आपका selected cell होता है. To select a cell, just click on it. अगर आपको cell select करना है आपको just उस पर click करना है. To select a range of cells using mouse, point your mouse pointer to the first cell in the range and drag to the left mouse until all the required cells are selected. आपको क्या करना है फर्स्ट सेलेक्ट करके आपको जो सेलेक्ट करना है वहां तक ड्रैग करना है अपना माउस जहां तक आपका रेंज आपकी सेलेक्ट नहीं हो जाती. टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड प्रेस द शिफ्ट की. अगर आपको सेलेक्ट करना है किससे? कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से नहीं करनी तो आपको क्या प्रेस करना है? शिफ्ट की एंड मूव टू द लोअर लास्ट सेल. और शिफ्ट की को प्रेस करके आपको लोअर लास्ट सेल तक ले आनी है ऑफ द रेंज यूजिंग एरो की को यूज करके. देन थर्ड पॉइंट टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम. अगर आपको पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑफ दैट कॉलम. उसके कॉलम हेडर के ऊपर क्लिक कर देना है बस. नाउ टू सिलेक्ट द कंप्लीट रो जस्ट क्लिक ऑन अ रो हेडर. अगर आपको पूरी कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है तो जस्ट उसके रो हेडर पे क्लिक करना है ऑफ द रो.
नेक्स्ट टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, अगर आपको पूरी एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ रो, क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करना है रो के एंड कॉलम हेडिंग्स पे। नाउ व्हाट कैन यू डू विद सेल रेंज, आप क्या कर सकते हो सेल रेंज के साथ? यूजिंग सेल रेंज इन एक्सेल लेट्स यू टू डू मेनी टास्क क्विकली। अगर आप सेल रेंज यूज कर लेते हो तो बहुत सारे टास्क आपके बहुत तेज जल्दी से हो जाते हैं। Like you can apply functions like sum, average, minimum, maximum to a cell range, helping you calculate totals, average, minimum and maximums with ease. For example, instead of typing individual cell addresses in a function, you can simply select a range like A1 to perform calculation on all those cells. आप A1 डाल सकते हो calculation perform करने के लिए अपने सारे cells पे। Ranges are also useful for formatting groups of cells, such as making all cells in a range bold, changing text color or applying background color. You can also use ranges for sorting and filtering. आप ranges को किस में use कर सकते हो? Sorting और filtering के लिए भी use कर सकते हो, which helps organize and find data easier. वो क्या करता है? आपके data को organize कर देता है और find करने में help करता है। Excel offers various tools. Excel क्या करता है? ऑफर करता है बहुत सारे टूल्स टू मेक वर्किंग विद रेंजेस इजी एंड क्विक, सेविंग योर टाइम। आप वर्क कर सकते हो बहुत इजीली और क्या करता है क्विकली, और वो उससे आपका टाइम सेव होता है। इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूलाज, क्या है इंट्रोडक्शन इसके? नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर टूल्स दैट यू डू कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। क्या टूल्स होते हैं जिससे आप कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर सकते हो। They start with an equal, किसके साइन से स्टार्ट होता है? इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। and include number, cell reference and functions. उसमें नंबर होता है, सेल रेफरेंस होते हैं और फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप A1 plus A2, अगर आप टाइप करते हो A1 plus A2 इन सेल, Excel will add the values in cell A1 and A2. तो Excel वो ऐड कर देता है सेल में वैल्यू A1 and A2. Formulas are helpful for many tasks like adding numbers, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग और फाइंडिंग परसेंटेजेस। फॉर्मूलाज किस में यूजफुल होते हैं आपको? अगर आपको परसेंटेजेस निकालने, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडिंग करना है, फाइंड करना है, कुछ भी। इंस्टेड ऑफ डूइंग मैथ बाय हैंड, अगर आप हैंड से कर रहे हो उसके बजाय आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो अपने एक्सेल में। यू कैन यूज अ फॉर्मूला टू गेट क्विक आंसर्स। यू कैन ऑल्सो कंबाइन फंक्शंस विद फॉर्मूलाज टू डू एडवांस्ड कैलकुलेशन। वेरियस अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन फॉर्मूलाज आर लाइक ऑपरेटर प्लस, किसमें यूज होता है? आपके एडिशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 35 प्लस 45, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए इनटू, देन डिवीजन, देन एक्सपोनेंशिएशन के लिए ये साइन होता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्कशीट। आप इस वर्कशीट पे देखिए, टू फाइंड सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप 1, अगर आपको अमाउंट निकालना है किसी प्रोडक्ट का, क्या करना है आपको? स्टेप 1, क्लिक ऑन सेल G2। आपको G2 सेल पे क्लिक करना है लाइक हियर एंड टाइप इक्वल। आपको क्या टाइप करना है? इक्वल टाइप करना है। देन इक्वल साइन टू स्टेप 2, क्लिक सेल E2। आपको क्लिक करना है सेल पे E2 पे। द एड्रेस E2 गेट्स ऑटोमेटिकली टाइप आफ्टर S इज इक्वल्स टू S इक्वल्स टू E2। कैसे टाइप हो जाएगा? इज इक्वल्स टू E2 की तरह। नाउ स्टेप 3, नाउ एंटर द मैथमेटिकल ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड देन क्लिक सेल F2। आपको क्या एंटर करना है? मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करना है, दैट इज इनटू, एंड देन क्लिक ऑन सेल F2। फिर आपको क्लिक करना है सेल पे F2 पे, ना लाइक हियर, लाइक गिवन ओवर हियर। नाउ नो इट फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। एक्सेल के फॉर्मूलाज हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। स्टेप 4, क्लिक द एंटर क्लिक करना है बटन, दैट इज टिक बटन ऑन द फॉर्मूला बार like here. Now the result will appear in cell G2. जो result है कहाँ पे appear हो जाएगा? cell G2 में appear हो जाएगा like over here. The result will appear in cell G2. In order to copy the formulas to another cell, click the cell showing the formula result. Click करना है आपको सेल पे जो आपको formula result show करेगा। The autofill handle will appear at the bottom. जो autofill handle है वो bottom में appear हो जाएगा, the right corner of the cell. क्लिक एंड ड्रैग इट डाउन टिल द लास्ट सेल। आपको क्लिक करना और ड्रैग करना है डाउन टिल तक लास्ट सेल के। द रिजल्ट विल अपीयर इन द ऑल, जो फॉर्मूला आपने लगाया था उसका रिजल्ट सारे सेल्स में आ जाएगा। नाउ द टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग इन एक्सेल टेल्स अ फॉर्मूला विच सेल टू यूज। वो रेफरेंसिंग क्या आपको बताता है? टेल्स अ फॉर्मूला विच सेल टू यूज, कि आपको फॉर्मूला किस सेल में यूज करना है।
There are three main types of referencing. Three main types की referencing होती है, that are relative, absolute and mixed. Relative reference क्या होता है? References change when copied to other cell. जब आप copy करते हो उसे दूसरे cell में, making them flexible for calculations. Flexible बना देता है आपको calculations के लिए across a range of cells. Absolute references don't change. Absolute references change नहीं होते जब when copied, which keeps certain values fixed. वो क्या करता है कि certain values को fix रखता है, like text rates. Mixed references combine both. Mixed reference क्या करता है? दोनों को combine करता है with one part of the cell reference fixed and other part flexible. जो one part है उसका fixed होता है, other होता है flexible. Now each type is useful in different situations, helping you control how formulas behave when copied to different cells. वो हर type का आपके लिए important होता है different situations में कि आपको कौन सा formula लगाना है different cells में. Learning these references type will improve how you work with formulas. अगर आप learn कर लोगे different referencing types को तो आपको पता चल जाएगा आपको कैसे work करना है formulas के साथ. Now let's talk about relative referencing. Relative referencing means the cell references in a formula change when you copy it to another cell. जो cell reference होता है आपके formula का वो change हो जाता है जब आपको दूसरे cell में copy करते हो. For example, if you have is equals to A1 plus V1 in cell C1 and copy it to C2, the formula automatically change to A2 plus B2. जो आपका formula है वो automatically A1 से A2 में आ जाएगा, B1 से B2 में आ जाएगा क्योंकि cell range change हो रही है. This is useful when you need to perform the same calculation rows or columns. जब ये बहुत ज़्यादा useful होता है जब आपको results बनाने होते हैं तो आपको सारे students का result एक साथ मिल सकता है. It makes it easy to use one formula in multiple places without retyping it. आपको retype करने की जरूरत नहीं है, आप एक formula आपके multiple places पे चल जाता है. Relative reference is the default web self referencing used in Excel. ये default होता है जो web self referencing होता है Excel में. Now absolute referencing. What do you mean by absolute referencing? Absolute referencing is used when you want a cell reference to stay the same. जब आप चाहते हो कि cell reference आपका same रहे, even if you copy the formula to other cell. अगर आप copy करते हो formula को other cell में, you create an absolute reference. आप क्या create करते हो? एक absolute reference create करते हो by adding dollar sign. ये dollar sign add करके before the column and row. Dollar sign add कर देते हो before your column and row, that is dollar A example and $1. For example, if you have a text rate in cell A1, आपको text rate है cell A1 में that you want to use in multiple calculation, you can use $A and $1 in your formula. This ensures the formula always refers to cell A1. ये क्या ensure करता है कि आपका formula cell A1 से refer करता है no matter when you copy it. Absolute referencing is useful for fixed values. Absolute referencing किस में useful होता है? आपके fixed values के लिए useful होता है that don't change, like constants or rates. वो change नहीं होते आपके constants और rates की तरह. Now mixed referencing. What do you mean by mixed referencing? Mixed referencing is a combination of relative and absolute referencing. ये क्या है? आपका combination है आपको relative और absolute referencing का. In mixed referencing, one part of the cell address, column or row is made absolute, while the other part is relative, such as $A4 or $A$4. In mixed referencing, the cell references change in one direction. जो mixed referencing में होता है, cell एक direction में change होता है, that is row or column. या फिर while the part made absolute remains same. जो आपका part absolute तो same रहता है. Formulas copied to all cell. Now defining and using name range. आप define कैसे कर सकते हो name range को use करके? Name ranges allow you to give a range of cell a name. जो एक cell का range होता है उसको आप एक name दे सकते हो, making it easier to use them in formulas. वो आपको क्या करता है? Easier कर देता है आपको formulas use करने के लिए. Instead of typing a cell range like A1, you can name it something meaningful. A1 टाइप करने की जगह आप उसको कुछ meaningful name भी दे सकते हो, like sales data. To define a name range, select your cell. आपको name range define करने के लिए आपको क्या select करना है? Cell select करना है. Go to the formula tab, click define name.
फॉर्मूला टैब पे जाके आपको डिफाइन नेम करना है, टाइप अ नेम, आपको नेम टाइप करना है। नाउ यू कैन यूज इट इन फॉर्मूलाज, अब आप उसको फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हो। नेम रेंज हेल्प्स मेक फॉर्मूला इजियर, नेम रेंज क्या करते हैं, आपको फॉर्मूलाज को इजियर बनाने में हेल्प करते हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, किसमें यूजफुल होता है, एक लार्ज डेटा सेट्स में यूजफुल होता है, एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। नाउ नेमिंग अ रेंज ऑफ सेल, आप कैसे नेम कर सकते हो एक सेल की रेंज को। टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स, स्टेप 1 सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल, आपको सिलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स को लाइक दिस। स्टेप 2 राइट क्लिक ऑन द रेंज ऑफ सेल, राइट क्लिक करना है उसको रेंज की सेल पे, अब पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो गया। क्लिक ऑन डिफाइन नेम, किस पे क्लिक करना है, डिफाइन नेम पे क्लिक करना है, डिफाइन नेम ऑप्शन, द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4 राइट अ नेम फॉर द रेंज ऑफ सेल एंड क्लिक ऑन ओके बटन, आपको रेंज नेम लिखना है लाइक दिस, और फिर किस पे क्लिक करना है, ओके बटन पे। द पर्टिकुलर रेंज विल बी नेम, जो पर्टिकुलर रेंज है उसका नेम हो जाएगा। द पर्टिकुलर रेंज विल बी नेम, दिस नेम इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स, ये डिस्प्ले कहाँ पे होगा, नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज, यूजिंग नेम रेंजेस इन फॉर्मूलाज, आप कैसे यूज कर सकते हो नेम रेंजेस फॉर्मूलाज में। यू कैन यूज नेम रेंजेस इन प्लेस ऑफ सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला, सेल रेफरेंस की प्लेस पे यूज कर सकते हो फॉर्मूला में। लुक एट द वर्कशीट गिवन इन द इमेज। स्टेप 1 सिलेक्ट सेल E2 टू E5, आपको सिलेक्ट करना है सेल E2 से E5 तक, एंड नेम द रेंज एज रेट, उसको कैसे रेट नेम करना है, रेट की तरह नेम करना है। सिलेक्ट G2 तो G5, फिर आपको G2 से G5 तक सिलेक्ट करना है, फिर उसको क्या नेम देना है, डिस्काउंट नेम देना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन सेल H2, आपको क्लिक करना है किस सेल पे, H2 पे, एंड टाइप द फॉर्मूला लाइक is equals to rate minus discount, आप वहां पे फॉर्मूला टाइप करना है is equals to rate minus discount and press enter key, the result of the formula is displayed, जो रिजल्ट होगा फॉर्मूला का वो डिस्प्ले हो जाएगा इन सेल H2 ओनली, यहाँ पे जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा like shown over here। ऑब्जर्व द फॉर्मूलाज इन फॉर्मूला बार, आप ऑब्जर्व करते हो फॉर्मूला कहाँ पे, फॉर्मूला बार में over here। नाउ फंक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस। Functions are predefined formulas, predefined formulas होता है used to perform some particular operations quickly, वो किसमें यूज होता है, एक particular operations को quickly perform करने में। Functions must always begin with an equal sign, किससे begin होता है, एक equal sign से begin होता है। A function has two parts, उसके two parts होते हैं function name and argument। The arguments are normally given within parentheses। Let us study some common functions we use in Excel, अब हम कुछ common functions पढ़ेंगे जो हमने Excel में यूज करते हैं। That is sum, it is used to add all the numbers in the specified range of a cell, वो किस में यूज होता है, ऐड करने में नंबर जो आपके specified cell range में आते हैं। Now examples, इसका फॉर्मूला क्या है, is equals to sum F2 and F5, F2 से F5 तक के आपके सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे और उसका सारा सम आ जाएगा। Now average फाइंड करने के, it is used to calculate the average of numbers in the specified range of cell, वो क्या यूज किस लिए यूज होता है, एवरेज निकालने के लिए नंबर्स के एक स्पेसिफाइड सेल रेंज में। एग्जांपल एवरेज F2 F5। Now count, it is used to count the number of cells, किस में यूज होता है, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने में। in the specified range of cell that contains numerical value, इसमें क्या होता है, numerical values होती है। Now you can see in this picture like मैक्सिमम निकालने की, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालने में यूज होता है इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल, एक स्पेसिफाइड रेंज में सेल्स के यू कैन सेलेक्ट लाइक दिस, और वहां पे आप यू कैन पुट द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मैक्स, आपकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो निकल के आ जाएगी कि आपके F2 सेल में है या किस सेल में, इज इक्वल्स टू मैक्स डाल के, और आपको सेलेक्ट करना है F2 से F5 तक के सेल, उसके बीच की जो भी रेंज मैक्सिमम होगी आपकी निकल के आ जाएगी। नाउ मिनिमम, वो आपकी मिनिमम रेंज निकालने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड रेंज, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है कि स्पेसिफाइड रेंज में उसका फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल्स टू मिनिमम और F2 से F5 तक की रेंज में, लाइक दिस। नाउ स्क्वायर्ड, SQURT, इट इज यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट, आपके स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करता है ऑफ वैल्यू इन अ गिवन सेल, एक सेल की वैल्यू में। लाइक फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर्ड 100। नाउ टुडे
टुडे क्या है, आपकी करंट डेट निकालने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट, आपकी करंट डेट डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। एग्जांपल, इसको क्या डालोगे आप, इज इक्वल्स टू टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, आपकी यहाँ पे डेट अपीयर हो जाएगी यहाँ। Now using functions, what do you mean by using functions? Let us calculate the total amount using sum function. आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल अमाउंट को क्या यूज करके, सम फंक्शन यूज करके। उसके लिए स्टेप 1 क्या है, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फंक्शन, क्लिक करना है उस सेल पे जहां पे आपको फंक्शन ऐड करना है। देन ऑन नेक्स्ट पेज स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन द और फॉर्मूला टैब, इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करना है फॉर्मूला टैब में, और क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन बटन इन द फॉर्मूला बार, या फिर फॉर्मूला टैब में या फॉर्मूला बार में क्लिक कर सकते हो। द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपका इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 3, सेलेक्ट फंक्शंस, क्या सेलेक्ट करना है आपको, फंक्शन सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ओके बटन, फिर आपको किस पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले, जो फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स है वो आपका ये बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर रेंज ऑफ सेल्स, आपको क्या रेंज करना है, एंटर करना है, रेंज से एंटर करना है। आर्गुमेंट बॉक्स नंबर इज 1, नाउ किस में एंटर करना है, आर्गुमेंट बॉक्स नंबर 1 में, देन ओके। स्टेप 6, क्लिक ऑन ओके बटन, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। द रिजल्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल, जो रिजल्ट है वो आपके सिलेक्टेड सेल में अपीयर हो जाएगा। नाउ सॉर्टिंग डाटा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग डाटा? Sorting means arrange data either in ascending या फिर descending order, आपको डेटा ascending order में अरेंज करना है या फिर descending order में अरेंज करना है। To sort the data, select the cell, for example E2 से E5 तक के सेल सिलेक्ट कर लो आप। Then click on data tab on the ribbon, किस पे क्लिक करना है, रिबन में data tab पे क्लिक करना है। Step 3, from the sort and filter group, click on sort A, sort और filter group में से किस पे क्लिक करना है, sort A पे क्लिक करना है। Now Z जो ऐसे बन के आ रहा है साइन लाइक दिस, options to start in ascending order, sort Z to A, options to start in descending order, आपको ascending में करना है तो sort आएगा Z A आएगा, अगर A Z आएगा, और descending में करना है तो Z और A आएगा। Now to sort on basis of multiple column, आपको multiple columns में sort करना है। Select step 1, select the range of cells that contains the data to be sorted, आपको जो डेटा सॉर्ट करना है सेलेक्ट करना है उस रेंज को। देन ऑन द डेटा टैब में जाके आपको क्या करना है, इन सॉर्ट एंड फिल्टर्स ग्रुप क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपको सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया यहाँ पे। स्टेप 3, अंडर कॉलम के नीचे क्या करना है, क्लिक द सॉर्ट बाय डाउन एरो, क्लिक करना है सॉर्ट को डाउन एरो से लाइक दिस, and select a column from the list, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कॉलम लिस्ट में से on which you want to sort the data. Now step 4, under order के अंदर क्या करना है, click the down arrow, आपको किस पे क्लिक करना है, ऑर्डर में भी डाउन एरो पे क्लिक करना है। then select an option to specify the sort order A to Z, सिलेक्ट करना है ऑप्शन सॉर्ट डेटा का, दैट इज A to Z और Z to A, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग। स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट फ्रॉम द लिस्ट, दैट इज स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, आपको जिसको जो करना है उस पे सिलेक्ट करना है। नाउ स्टेप 5, वी हैव चूजन द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने चूज करा है क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। Now step 6, click on the OK button, आपको OK बटन पे क्लिक करना है। Excel sort the data on the basis of first column and where the data values in the first columns are same. Excel sort करता है किसके बेसिस पे, फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे डेटा को, और कहाँ पे, where the data values in the first columns are same, जहाँ पे सेम होती है वैल्यूज on the basis of second column. Now filtering data, what do you mean by filtering data? Filtering is a process to extract the record from the worksheet that fulfill certain condition. Extract करना रिकॉर्ड से रिकॉर्ड को वर्कशीट से जो आपके फुलफिल करे कुछ कंडीशंस को। If temporary hides the rows, वो क्या करता है, टेम्परेरी आपकी हाइड कर देता है रोज को, you don't want to see, जो आपको देखनी नहीं है। Excel provides auto filter, Excel क्या प्रोवाइड करता है, ऑटो फिल्टर प्रोवाइड करता है, and custom filter to filter the data in a worksheet. Now auto filter क्या होता है, the auto filter is used to filter
data on basis of specific value present in the column. जो specific value present होती है आपकी column में, तो filter the record. Step 1, select any cell in the range or select range of cells. आपको select करना है cell की एक range की या range of cells को select करना है. Step 2, click filter. आपको किस पे click करना है? Filter bar पे click करना है. Option in the sort and filter, जो आपके sort और filter option में आएगा. Group on the data tab. Now filter drop down, एक filter drop down आ जाएगा आपका. That is like this, question mark will appear to the right of each file name. Question mark appear हो जाएगा आपकी एक each file name के आगे. Each file name in the column hidden row. कहाँ पे आएगा? Column hidden row में आ जाएगा. Now step 3, now to filter the records. अगर आपको filter करने हैं records with same data values in a particular field, click on filter drop button. किस पे click करना है? filter drop button पे click करना है of the field name. A list appears showing values of the same column. list होगी appear जो एक show करेगी same columns को. The option select all the checked by default. जो option होता है select करता है आपके सारे check को default अपने आप. Now step 4, uncheck the select all. आपको uncheck करना है select all पे. Check only those values whose related record you want to see. खाली आपको select करना है उनको जिनकी records को आपको देखना है. For example, in the number filter you choose greater than. आप number filter में क्या choose करते हो? greater than को choose कर लेते हो. It's just an example. Now step 5, click on OK button. Step 5 में क्या करना है? OK button पे click करना है. Choose filter and see the selective records. फिर आपको selective records दिख जाएंगे. Now removing filter. How can you remove the filter? You can remove the filter and see all the record again. आप remove कर सकते हो filter को, दोबारा से सारे records को देख सकते हो. Select any cell in the worksheet. आपको कोई भी एक select करना है cell worksheet में. On the data tab. Data tab पे click on filter. That is question mark option in sort and filter group. Now the filter drop down will disappear from the worksheet. जो filter drop down है वो disappear हो जाएगा आपकी worksheet से, and the hidden records will be displayed again in the worksheet. जो hidden records है आपके display हो जाएंगे आपके worksheets में. Now what do you mean by conditional formatting? This feature of Excel is used to format the cells value. आपकी जो feature है क्या format करने में help करता है? आपकी cells की values को to a specific format if they follow certain condition. For example, if the total amount is above 1000, अगर आपका total amount किससे ऊपर है? 1000 above है, they should appear in green color. वो किसमें appear होगा? green color में appear होगा with bold effect. If the amount is between 800 to 1500, they will appear in yellow color. वो yellow color में appear हो जाएगा. This is our conditional formatting की हम अपने according कर सकते हैं. Bold effect, and if less than 1500, they will appear in red color. अगर 1500 से कम है तो रेड कलर में अपीयर हो जाएगा. This is the column of conditional formatting. Now to automatically format the values as per the set conditions, step 1 आपको क्या करना है? Select the range of cells to which you want to apply the formats. आपको range of cells select करना है कि आपको किसमें ये conditions लगानी है. Step 2, click on conditional formatting. फिर आपको conditional formatting पे click करना है. Conditional formatting options in the styles group in the home tab. आपके home tab में appear हो जाएगा. Now a menu appears with several options of specifying the criteria. Menu appear हो जाएगा special options के साथ. Step 3, select highlight cell. आपको क्या select करना है? highlight cell को select करना है and then select the criteria. आपको criteria पे select करा. You want to use like greater than, less than, between, equal to, text that contains the data occurring a duplicate values. A dialog box opens when you can specify the reference value. एक dialog box open होगा जब आप specify कर दोगे reference value को. Now step 4, enter the value. आपको value enter करनी है. For example, choose greater than, type 1000. आपको greater than choose करना है या फिर आप 1000 टाइप कर सकते हो. Step 5. Now click the drop down. आपको drop down menu पे click करना है, drop down arrow and select the desired formatting green. आपको desired formatting green का select करना है. Fill with dark green text. वो किससे fill हो जाएगा? Dark green text से fill हो जाएगा. Step 6, click on OK. आपको OK पे क्लिक करना है, OK बटन पे to close the dialog tab.
इससे आपका डायलॉग टैब क्लोज हो जाएगा। नाउ टू ऐड द सेकंड कंडीशन, अगर आपको सेकंड कंडीशन ऐड करनी है, रिपीट द अबव स्टेप्स, फिर से ये अबव स्टेप्स को आप अगेन अपने आप रिपीट कर सकते हो। द वैल्यूज इन द सिलेक्टेड रेंज विल गेट फॉर्मेटेड एज पर द सेट कंडीशन। जो सिलेक्टेड रेंज में वैल्यूज है अपने आप फॉर्मेट हो जाएगी अपनी सेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नाउ एडिंग अ वर्कशीट, आप कैसे वर्कशीट को ऐड कर सकते हो? तो a worksheet is a single spreadsheet। वर्कशीट क्या होती है? एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है। You can add many worksheet in a book। आप बहुत सारी वर्कशीट ऐड कर सकते हो। To add a new worksheet, click on insert। अगर आपको ऐड करनी है कोई न्यू वर्कशीट, आपको किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट पे क्लिक करना है। Then worksheet बटन from the sheet टैब, फिर वर्कशीट बटन आ जाएगा आपके शीट टैब में से। Now renaming a worksheet, आप कैसे रिनेम कर सकते हो वर्कशीट को? The default name of the worksheets are sheet 1, sheet 2। डिफॉल्ट नेम क्या है उसका? sheet 1 आ गया, sheet 2 आ गया। आपको कैसे रिनेम करना है? And so on, which can be renamed suitably as needed। आप उस पर कैसे क्लिक कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो? These sheet names are displayed in the sheet tab। फिर वही sheet name आएंगे, डबल क्लिक ऑन द sheet name, आपको डबल क्लिक करना है sheet name पे in the sheet tab, और राइट क्लिक ऑन द sheet name, राइट क्लिक कर दो sheet name पे and sheet tab on क्लिक ऑन रीनेम ऑप्शन, फिर आपको रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। नाउ द टैब नेम एग्जांपल शीट 1 इज हाईलाइटेड। जो टैब नेम है आपका शीट 1 होगा जो वो हाईलाइट हो जाएगा। एंटर न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की, न्यू नेम एंटर करो और एंटर की को प्रेस कर दो। यू कैन डिलीट अ वर्कशीट इफ इट इज नो यूज टू यूज एनी मोर। आप डिलीट कर सकते हो वर्कशीट, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है अब। तो राइट क्लिक ऑन द शीट दैट यू वांट टू डिलीट, राइट क्लिक करो शीट पे जो आपको डिलीट करनी है एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन लाइक दिस ओवर देयर इट इज गिवन द डिलीट ऑप्शन। एक्सेल डिलीट द वर्कशीट इफ इट इज एम्प्टी। एक्सेल डिलीट कर देते हैं वर्कशीट को अगर वो एम्प्टी होती है। इफ द वर्कशीट कंटेन्स डेटा, अगर वर्कशीट में डेटा है, एक्सेल डिस्प्लेज अ वार्निंग मैसेज, एक्सेल डिस्प्ले करेगा आपको वार्निंग मैसेज। क्लिक ऑन डिलीट बटन टू डिलीट द वर्कशीट परमानेंटली। अगर आपको फिर भी वो डिलीट करनी है तो यू कैन क्लिक ऑन द डिलीट बटन उसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए। नाउ चेंजिंग द कलर, हाउ कैन यू चेंज द कलर? वर्कशीट विद डिफरेंट टैब कलर हेल्प टू आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज वर्कशीट। वो आपको आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनाइज वर्कशीट में हेल्प करती है। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन शीट टैब। आपको राइट क्लिक करना है किसपे? शीट टैब पे ऑफ द वर्कशीट। whose tab color you want to change, जिसका टैब कलर आपको चेंज करना है। चूज टैब कलर फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, आपको चूज करना है टैब कलर किससे? शॉर्टकट मेन्यू से। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू अप्लाई, क्लिक करना है आपको कलर पे जो आपको अप्लाई करना है। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.